Yes, good afternoon, guys. चलिए आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस. हमारी मिसलेनियस क्लास फॉर एसएससी. यस, गुड आफ्टरनून प्रीति, ममता, अमरजीत. ओके, तो ये हमारी क्या है, कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस. ठीक है, जो हम इस पे करने वाले हैं. तो ये फर्स्ट वाले का आंसर बिल्कुल ठीक बताया आपने. ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बट ये होता है कि कुछ ऐसे होते हैं, बस हमें ध्यान रखना चाहिए उस टाइम पर, तो याद रहना चाहिए कि किसका आंसर क्या होने वाला है. मैन गिव मी अ सेक. ठीक है, तो यस फर्स्ट क्या हो जाएगा. इफ वी डोंट ऑफर अ गुड प्राइस फॉर द हाउस ही विल प्रोबेबली मिस द बोट. यानी कि वी माइट हैव एक्टेड लेट, ऐसा कुछ. ठीक है, तो यस सेंटेंस इज करेक्ट. यानी इसका आंसर हो जाएगा बी. बिल्कुल सही. नेक्स्ट, आई एक्सपेक्ट यू टू डू द जॉब वेल बट डोंट ट्राई टू बॉयल द ओशन. तो none of the above होगा. नहीं, none of the above नहीं होगा. बॉयल द ओशन का मतलब है डोंट ट्राई टू डू द लाइक वेस्ट टाइम. डोंट ट्राई टू वेस्ट टाइम. मैं तुमसे चाहता हूँ कि आई वांट यू टू लाइक डू द जॉब वेल, कि मेहनत करो, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी करने में टाइम वेस्ट कर रहे हो बिकॉज आई वांट यू टू डू द जॉब, ऐसा. ठीक है, कि मैं तुमसे मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जॉब अच्छे से करो, लेकिन ऐसा नहीं कि फालतू में मेहनत करते रहना. तो डोंट वेस्ट योर टाइम. तो बॉयल द ओशन इज वेस्ट टाइम. यस. I made no bones about it and directly told him his offer was unacceptable. Be blunt. Yes. ठीक है, अगर हम when we say ना to make bones, इसका मतलब है कि we are little hesitant about something. किसी चीज को हम थोड़ा सा hesitate होके कह रहे हैं. तो yes, be blunt, यानी बात को सीधे बोल देना बिना किसी प्लॉट को बनाए, बिना premise सेट किए. ठीक है, yes. तो I made no bones means I was blunt. Okay. I don't know how he puts up with their constant complaining. Tolerate. Tolerate. Yes. Okay. I don't know how he puts up with their constant complaining. To tolerate their constant complaining. अच्छा, put को हम एक और तरीके से यूज करते हैं. I put up and hotel. इसका मतलब I resided there. मैंने वहाँ पे रुकने का, ठहरने का इंतजाम किया. उसके लिए हम लोग कई बार यूज करते हैं put up के लिए. I don't know how he puts up with their constant complaining. This was how he tolerates their constant complaining. Yes, good afternoon, Sandeep. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. We just need to iron out a few things before the new software ready for release. Tackle minor issues. Yes. ठीक है. Tackle minor issues. Iron out as in ये ना कि iron out a few things, like we are just have to maybe iron the just we iron clothes ना to make them straight और अच्छा बनाने के लिए. We just need to iron out a few things before the new software is ready for release. Is ready for release होगा ना यहाँ पे भी. ठीक है. So yes, we need to tackle minor issues. Correct. If you really want to become a comic book artist, you have to keep at it.
Sir, perceive or hard work is one and the same, right? Perseverance and hard work almost same, but पूरी तरीके से सेम नहीं. Persevere का मतलब ऐसा होगा ना कि मतलब you should try doing something. Hard work is like उस चीज को और ज्यादा अच्छे से करना, but इसका मतलब कि you should like continuously do something without stopping. उसके लिए persevere यूज करेंगे ना हम लोग. हाँ. Yes, continuous efforts. Yes, मतलब ठीक है. तो continuous efforts के लिए हम लोग यूज करते हैं, और वो efforts कैसे है, whether they are hard or not, उसके लिए हम लोग hard work यूज करते हैं. तो keep at it, यानी कि keep at something, इसका मतलब yes, continuously do something, to continuously do something. This C is correct. Next, let's put our heads together and come up with a solution to this problem. Debate. I think both A and C. A and C. C is for argue and A is for Confirm. confer. थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में जाएगा, ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में जाएगा ना सी वाला, इसलिए हम सी के लिए नहीं जाएंगे. तो फिर none of these होना चाहिए, क्योंकि put our heads together means like doing a collective work, doing it together, not Doing debating it. or arguing or confer. Then हाँ, तो if- तो confer हो सकता है ना उसके लिए. yes sir, if it is a positive way, then confer हाँ, तुम will confer go. बोल सकते हैं. In sentence also we are saying tell and come up with a solution to this problem. So confer is correct, है ना. डिबेट का नहीं है. कंफर का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे we have to work together, इस तरह से बोल रहे हैं ना, consult, discuss और work together. Yes sir. ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए कंफर. यहाँ पे क्या मतलब हो जाएगा इसका, कंसल्ट, डिस्कस और वर्क टुगेदर, और वर्क टुगेदर. ठीक है, चलो इसके साथ आ जाएगा ये. नेक्स्ट देखते हैं. A brother and sister really put themselves out to make your party special, so it would be nice if you showed a little appreciation. Considerable effort. Put themselves out, yes, मतलब पूरी मेहनत किसी चीज में लगा देना. yes, बिल्कुल सही. Considerable efforts. ठीक है, तो put yourself out अगर ये यूज किया जाता है, इसका मतलब है considerable effort. सेंटेंस के साथ अगर पूछा जाए तो इट वुड बी इजियर एग्जाम में सॉल्व करना, अगर इडियम्स पूछे जाते हैं तो. बट कई बार वो सेंटेंस के साथ ही डायरेक्ट भी पूछते हैं, तो हम डायरेक्ट वाली प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. द लाइब्रेरी डिस्पेंसेस विद इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग आवर्स ड्यूरिंग द एग्जाम वीक. डिस्पेंसेस विद, नो. The library dispenses with Engage. dispense नहीं, dispenses with हम लोग यूज करते हैं मतलब to drop something, drop as in drop the Right. work. ठीक है. और Reduces. stops वाले सेंस यूज करेंगे हम उसे. ठीक है. omit के लिए भी यूज करते हैं इसे, I guess. ठीक है. dispenses with, so it's normal. The library dispenses with its normal operating hours during the exam week. The answer will be stop or reduces. Reduces नहीं होगा, stops होगा. The library stops its normal operating hours during the exam week. Stops. Okay. So चाहो तो you can write it down. Dispense with का मतलब होता है to eliminate. ठीक है, यानी कि ड्रॉप करना, omit करना, eliminate करना, इस सेंस में इसे यूज करते हैं हम लोग. Dispense with means to eliminate. Stops means complete बंद होगा.
हाँ तो हो सकता है ना, ये जो नॉर्मल ऑपरेटिंग आवर्स है वो कंप्लीटली बंद रहते हैं उस टाइम पे, ठीक है, नॉर्मल ऑपरेट हो सकता है उस टाइम पे कुछ अलग से ऑपरेटिंग आवर्स हो, यहाँ पे ये नहीं बोला कि लाइब्रेरी बंद रहेगी, ठीक है, लेकिन हाँ जो नॉर्मल ऑपरेटिंग आवर्स है वो बंद रहते हैं उस टाइम पे, मतलब उस टाइम पे बंद रहती है, तो बेसिकली नॉर्मल ऑपरेटिंग आवर्स पे काम करना बंद कर देती है, हो सकता है कुछ अलग टाइम हो रही हो, ठीक है, तो टू एलिमिनेट और टू डू विदाउट, ठीक है, यानी कि इट वर्क्स विदाउट ऑपरेटिंग ऑन नॉर्मल नॉर्मल आवर्स, तो 1-2 घंटे के लिए खुलता हो, कुछ भी हो सकता है रीजन वो तो, लेकिन हाँ अगर हम डिस्टेंस विद यूज करें इसका मतलब टू एलिमिनेट समथिंग और टू डू विदाउट समथिंग, ठीक है, रिड्यूस करना नहीं होगा। After months of writer's block, I'm still surprised that I just read off 3 short stories a week. इसे वैसे रीड इन भी बोलते हैं अगर सुनाओ कई बार तो, you know? वैसे रीड इन दूसरे सेंस में यूज होता है, when you get a deal or something, तो reel off is fine. A, get something done easily. क्या होगा? A Get तो something होगा done. Get something done easily. Yes, yes, yes. Reel off. Yes. Okay, ये हो जाएगा इसका। Reel in सुना है ना? When you get a good deal on something, तो उसके लिए reel in बोलते हैं। और reel in कोई fishing वाला rod वाला reel in होता है, ठीक है? देखो अगर उसमें reel in करते हैं, तो to get a good deal, उसमें कई बार यूज करते हैं reel in. And I just reeled off 3 short stories and get something done easily. ये संदीप को Instagram reel से आता है? No. ठीक है, ये सारा रील्स, और ये रील्स वर्ड कहाँ से आया उसमें, इंस्टाग्राम रील्स में भी पता है ना, मेरे ख्याल से वो कैमरा की रील्स होती थी वहीं से आया ये वाला ना, कैमरा वाली रील्स से सारा कुछ कनेक्टेड है। नाइस, अब तो सारी चीजें डिजिटल हो गए, तो वो मेरे ख्याल से वो नेगेटिव वो वाली रील्स तो भी कम ही मिलती है, मैंने कहीं देखा ही नहीं अब तो यूज उसका। Something which appears to be real. Yes, सर ये सही डेफिनेशन है ना उसकी, something which appears to be real. रील से निकल रहा है वाली चीज, समथिंग व्हिच अपीयर्स टू बी रियल, एक्चुअली रील ही ऐसी थी जो रियल में हमारे हाथ में आ सकती थी, अभी डिजिटल है सब कुछ। वैसा सही कुछ पुरानी को कर दिया ना, क्या बोले उसे, मॉडिफाइज लाइक पुरानी चीज को यूज करके, आइडिया सारे पुरानी है ना। हाँ फिर रील से भी पुराना कैमरा रखा हुआ था, उसमें रील निकाली थी सारी, हमने खोल दिया, खराब कर। एक्चुअली है हालांकि कैमरा, मुझे पता है, मतलब मुझे कुछ टाइम पहले ही कैमरा लिया था मैंने एक नया, उस टाइम जिस टाइम पे डिजिटल कैमरा आए थे, तो डिजिटल कैमरा जब आया था उससे पहले मैंने कुछ टाइम पहले लिया था, 1-2 साल पहले, और वो शायद 1-2 बार ही यूज किया हुआ, उसके बाद डिजिटल कैमरा आ गया था, फिर तो उसे किसी ने देखा भी नहीं ऐसा। नहीं वो संदीप पुराना रखा हुआ था जब हम छोटे थे तब का। अच्छा, उसमें रील्स भी रखी थी साथ में ना। हाँ वो पापा को बहुत शौक था फोटोग्राफी का, तो पापा का कैमरा रखा हुआ था पापा के पास, वो पुराना। संदीप लॉकडाउन शुरू किया वीकेंड मुंबई में, सही है, वीकेंड तक ही रखना, उससे ज्यादा मत करवा, भी आराम से शांति से रह लो सब लोग घर पे, अगर ऐसा है तो। आई डोंट फील कि भी कोई रेडी है भी फिर से उस चीज के लिए, फिर नाइट 8 टू हाँ सर 8 PM दिल्ली टू में भी लग 1। गया नाइट वाला। हाँ नाइट कर्फ्यू दिल्ली में शुरू हो गया, सबसे ज्यादा मुंबई में है, हाँ सर वो 8 पहले PM ध्यान नहीं दिया ना इन लोगों ने। पहले ध्यान दीजिए, पहले आराम से घूमने लगे, सोच रहे सोन सूद तो है वहाँ पे काफी सारे लोग, मुंबई सरकार के केसेस ज्यादा है, ये बात भी सही है, कुछ और काम हो जाए होता है ऐसा वैसे, लेकिन अभी बंगाल में बिल्कुल ही कोरोना नहीं पहुंचा है, ये अच्छी बात है, बंगाल से बिल्कुल दूर दूर है, इसके आसपास भी नहीं है बिल्कुल भी, वहां जैसी कोई स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। वास्तन के बाद पता चलेगा सर। किसके बाद? वोटिंग के बाद ना? अभी उसी की वजह से सब शांत है। हाँ बिल्कुल उसी की वजह से शांत है,
उसके बाद में पता चलेगा। और वैसे वहां पे इतनी भीड़ है ना कि वो क्या बोलते हैं ना उसमें, पूरा सरकास्टिक तरीके से बोलते हैं कितनी भीड़ है वहां पे, की भीड़ में वो दब के मर गया कोरोना वहां पे, तो इतनी ज्यादा भीड़ है, like, लाखों में लोग इकट्ठा हो रहे हैं वहां पे। फाइन, ठीक है, इस तरीके से हमारा दर्द दूर हो रहा है इससे। चलो बीजेपी कोरोना का वैक्सीन है क्या सर? ऐसा ही कुछ है यार। मैं तो कह रहा हूँ फिर तो अच्छी बात है, सब जगह बीजेपी रहे, कोरोना नहीं होना चाहिए फिलहाल ये है, कोरोना तो नहीं रहे। इलेक्शन के बाद फिर से लॉकडाउन हो जाएगा ये तो पता चलेगा, लग रहा है ऐसे ही इलेक्शन के बाद लॉकडाउन करेंगे यहाँ पे। अभी इलेक्शन ऑलमोस्ट हो चुके हैं ना वहाँ पे भी, रह रहे थोड़ा सा भी। 19 को खत्म होगा सर। 19 को खत्म होगा, अभी है टाइम। अच्छा, the doctor says that the patient has turned the corner। ठीक है, देखो डॉक्टर जब सी लग रहा है ना, मेरे ख्याल से डॉक्टर से तो एक्सपेक्ट किया जाएगा प्लीज डोंट टॉक इन इडियम्स एंड फ्रेजेस, सीधी सीधी बात बताओ क्या हाल है। यस, पास द क्राइसिस बोलते हैं अगर इफ यू आर सेइंग टॉकिंग अबाउट टर्न द कॉर्नर का मतलब समवन हैज पास द क्राइसिस, मतलब खतरनाक वाला टाइम निकल गया अभी, पीपल ऑफ द पर्सन इज फाइन, ऐसा तब यूज करते हैं हम। तो टर्न द कॉर्नर का मतलब कंप्लीटली रिकवर या बिकम वर्स नहीं होगा, पास द क्राइसिस मतलब जो भी प्रॉब्लम थी वो अभी खतरे के बाहर है बेसिकली, ऐसा। रिकवर्ड, हाँ रिकवर्ड, बेसिकली रिकवर्ड, हाँ आउट ऑफ डेंजर बोल सकते हैं, है ना, आउट ऑफ डेंजर, थोड़ा रिकवर कर गया। यस, कनिका was left high and dry by her friends when she lost all her money। Abandoned, yes, कनिका was left high and dry, abandoned। okay, फोन टिप तो ये हो जाएगा ना, ये मार के भी चले गए। Yes, abandoned, कनिका was left high and dry by her friends, तो high and dry means abandoned, अकेले छोड़ जाना ऐसा। okay, a movement for the world unity is in the offing। About to start. yes, हाँ क्या हो जाएगा, yes about to start, बिल्कुल सही, ठीक है। in the offing means about to start, likely to happen, likely to appear soon, उसके लिए यूज करते हैं, कोई चीज जो शुरू होने वाली है, in the offing। in the armed forces it is considered a great privilege to die in harness। बहुत ही कॉमन, बहुत ही ज्यादा फेमस है ये वाला, die in harness। नहीं die while working, ठीक है, Yes, sir, die in die while harness, working. हाँ die in harness ही काफी ज्यादा मतलब फेमस सब ये है इडियम, die in harness, ठीक है। तो die while working, काम करते हुए, हार्नेस उसके लिए बोलते हैं ना, हार्नेस तो दिखा होगा, एक तो पैराशूट वाला हार्नेस होता है, इसके अलावा हार्नेस जब हम लोग हॉर्स के लिए जब उसे जोड़ते हैं उसको भी तो हार्नेस बोलते हैं, हॉर्स के कार्ड से जोड़ते हैं, तो मतलब बेसिकली जो भी कुछ वर्क के बीच में होता है हार्नेस का इस्तेमाल वहां पे होता है, उसके लिए हार्नेस बोला जाता है। Niharika is not a cut out for this kind of job, cut out, suitable। हाँ, तो जब भी हम बोलते हैं ना I have a cut out for this job, क्या trained, trained, नहीं like it's like diamond cut out, diamond को एक specially form किया गया, तो उस type वो polished word यूज, अगर आपको डायमंड वाले सेंस में यूज करना है तो मोस्टली polished word यूज किया जाता है, उसके लिए तो कट आउट नहीं यूज करते। suitable, कट आउट ऐसे समझो ना, लाइक आई एम नॉट कट आउट फॉर द जॉब, या फिर ही इज कट आउट फॉर दिस जॉब। कट आउट का मतलब है कि जैसे हम लोग पेपर कट आउट बनाते हैं ना, कि एकदम परफेक्ट किसी चीज में फिक्स करने के लिए, वी आर मेकिंग समथिंग, ठीक है, वो कट आउट से मतलब है यहाँ पे। तो इफ समवन इज कट आउट फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क, इसका मतलब ही इज सुइटेबल, परफेक्ट फॉर दैट जॉब, तो आप यूज करते हो इसे। नेक्स्ट, his most trusted friend proved to be a snake in the grass। A treacherous person। yes, a treacherous क्लास person। में भी बताया था। अच्छा बताया था ये वाला क्या? हाँ। चलो नाइस। So his most trusted, ये वो या आस्तीन का सांप वाला हो गया ना ऑलमोस्ट।
snake in the grass, treacherous person. चलिए नेक्स्ट वन, गिफ्ट ऑफ द गैप, बहुत ही कॉमनली यूज्ड है ये वाला फ्रेज भी. The politician was able to sway the mob with his gift of the gap. A. Fluency of Yes. speech. Fluency of speech, yes. ठीक है, fluency of speech. He has the gift of the gap. किसी के लिए बोला जाता है, इसका मतलब he is able to speak fluently. ठीक है, बिल्कुल सही. चलिए let's get some fill-ups now. इसके बाद हम vocab वाले पार्ट पे वापस आएंगे. ठीक है, बस मुझे बताना हमने कहाँ तक किए थे. First let's do some fill-ups, उसके बाद हम लोग वाले क्वेश्चंस करेंगे. Kennel. Yes, dogs के लिए होता है kennel. Kennel में. Yes. 105. Since I met you last. Many things have happened. Dash I met you last. Yes, वहाँ पे क्या यूज करते हैं? Since I met you last. Because ये क्या दिखा रहा है ना, जब मैं तुमसे मिला था, ये हमेशा क्या शो कर रहा है? Point of time. Point of time के लिए हम लोग हमेशा since ही यूज करते हैं. Yes, since आ जाएगा. बिल्कुल सही. 106. If dash permits, we will go. Weather. Put नहीं होगा. We will go out for a walk. C वाला weather. C वाला weather. Yes. If weather permits, we will go out for a walk. Correct. Okay. सब लोग फॉलो करते रहे साथ साथ में, क्योंकि इजी है, हम जल्दी कर लेंगे. His persuasive tone was able to tackle the boy whom other teachers had found dash. Tenacious. Tenacious क्या हो जाएगा? Tenacious means working continuously without any gap. अच्छा. सर सारे वर्ड्स का मैं मीनिंग बता दो चारों का. मैं वही सोच रहा कि सारे वर्ड्स कम लोग भी नहीं देख ले पहले तो. पहले आपने इसका आंसर क्या बताया? So tenacious नहीं, tenacious का सिर्फ मीनिंग बताया. Okay. सर क्या होगा Work इसका आंसर? continuously with enthusiastically. Enthusiastically. Yes. चलिए पहले वर्ड लिखते हैं. ओके, पहले फर्स्ट देखिए, पैरापेथेटिक मींस आइटिनरी. पता है? हाँ सर, जैसे अगर कहीं घूमने जाते हैं तो वो पूरा प्लानिंग कि हम क्या क्या Itinerary, yes, करेंगे. itinerant, yes. और itinerant होता है ना, nomadic kind of thing. इसी से मतलब ये घूमने वाली जो प्लान्स होता है उसके लिए itinerary बोलते हैं हम लोग इसे. और itinerant is a quality of a person जो घूमता रहता है. ठीक है, मतलब जो एक जगह नहीं रहता, जो इधर उधर घूमना पसंद करता है, बेसिकली काइंड ऑफ nomadic. ठीक है, nomad तो हम लोग जानते हैं, अलग वर्ड nomad. वैसे itinerant होता है. ठीक है, itinerant is a synonym of nomad. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा obdurate. It means stubbornly persistent. Stubborn वर्ड हम लोगों को पता है. ठीक है, तो इंसान जो सीधे हो, persistent. ठीक है, और देखो हम लोग वैसे persistent वर्ड यूज कर सकते थे, लेकिन हमने stubbornly लिखा है क्योंकि नेगेटिव उसमें टोन में बोला जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने ये वाला वर्ड लिया. ठीक है, बाकी tenacious हम लोग देख लिया था. tenacious का आपने क्या बताया था? So मतलब जो Work enthusiastically without taking any gap. इसका हम लोग जैसे होल्डिंग, हार्ड वर्किंग, होल्डिंग टुगेदर वाले सेंस में यूज करते हैं. होल्डिंग टुगेदर का मतलब है कुछ चीज साथ में रहना, ऑलमोस्ट स्टबर्न जैसा होता है, आई गेस. ठीक है, क्लिंजिंग वर्ड यूज करते हैं इसके लिए. Tenacious like he works tenacious, मतलब वर्क से रिलेटेड बोलते हैं ना कि he works Tenacious. tenacious something like that. या मैं दूसरे वर्ड से कंफ्यूज हो रही हूँ, maybe I'm wrong. दूसरे वर्ड से कंफ्यूज हो रहे हैं गेस यहाँ पे. वेट, दूसरा वर्ड था बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग के लिए. ये क्लिंजिंग या होल्डिंग टुगेदर मतलब किसी चीज से जुड़े रहना, उस वाले सेंस में यूज करते हैं हम लोग इसे. ठीक है, और इसका मतलब नेक्स्ट दूर तक जाओगे तो आप ऐसे बोल सकते हो हैविंग अ गुड मेमोरी. तो बेसिकली टू स्टिक टुगेदर वहां पे यूज किया जाता है इसे. And then word comes the word squeamish.
Squeamish. जैसे blood makes me squeamish वाला oh my god you ऐसा Oh my God, you. नहीं oh my god you like that Oh, upset करता है. हाँ मतलब जैसे Easily देख के अजीब सा bothered. फील होता है अच्छा तुमने क्या कहता है? What makes me squeamish? blood जैसे blood makes me अच्छा squeamish blood या makes me snakes squeamish. Yes, yes, yes. बिल्कुल सही. Easily bothered or easily upset. बिल्कुल सही. ठीक है, we can go for it. Nauseous भी बोल सकते हैं ना? हाँ ठीक है. Nauseous, nauseous, nausea. Nervous बोल दो. Nervous. ठीक है. Nauseous. ठीक है. तो nervous और nauseous वो यूएस ऐसे बोलेंगे ना पूरा. ठीक है. तो यस इसके विषय यहाँ पे क्या देगा? His persuasive tone was able to tackle the boy whom other teachers had found dash. कौन सा था achieve word? obdurate Obdurate. Yes. ठीक है. इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा. Peripatetic means itinerant or nomadic. Obdurate means stubbornly persistent. जो जिद्दी हो. Tenacious means holding together, clinging. किसी एक चीज पे adhere करे, stick करे. And squeamish means nauseous or nervous, easily bothered. ठीक है. Yes, we'll go with the word stubbornly persistent, यानी कि stubborn. तो जिस क्या था उसकी persuasive tone से वो बच्चे को आराम से टैकल कर लिया, जिससे बाकी टीचर्स कैसा मानते थे? stubborn मानते थे. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. I always fall dash old friends in times of need. fall back on, Fall back on. Yes, fall back on. Yes, इसका मतलब क्या होता है? To rely on. yes sir है ना? So I always fall back on old friends in times of need. बिल्कुल सही. ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. The campers dashed their tents at the base of the mountain. grounded या pitched Pitched is the word. Grounded नहीं. Pitched use करते हैं. They pitched their tents. है ना grounded का मतलब तो फिर ऐसा हो जाता है जैसे my parents grounded me for a week वही मेरे को भी वही याद आ रहा था. Yes, grounded means सेंस में आता है. Punish वाले सेंस में ना. हाँ जी सर punishment Yes, yes. Okay. Proper pitch. ठीक है. ये grounded actually word मेरे को वही flight से याद आता है. Flight, your flight has been grounded. यानी कि तुम जो भी मतलब अभी उड़ना अलाउ नहीं है ऐसा वाला. तो basically इसीलिए आता है वो वाला word. You are not free. My parents grounded me ऐसा. ठीक है. तो yes, camp के लिए tent के लिए हम यूज करते हैं pitch. This is correct. हाँ pitch ही होगा संदीप. Tent needs proper pitch and air. The party decided to take the shortest dash to its destination. ये तो easy है. shortest route Shortest Second वाला. route. Yes, yes, yes. Shortest route to its destination. Correct. The manager needs to hold dash his anger. hold on, hold back Hold back use करते हैं उसके लिए हम लोग. Yes. तो गुस्से को पकड़ के रखना है, दबा के रखना है तो hold back, hold down नहीं. Hold back his anger. Okay. Next, the girl was very pleased dash herself. with herself, with With herself herself. Yes. You could say. Next. Desire dash self-expression is one of the basic qualities of For. man. for For no. Desire for self-expression मतलब नहीं बन रहा ना उसका सही. सर over हो सकता है desire over self ही होगा. expression Yes, over ही होगा. Desire over self-expression. अभी self-expression से ज्यादा desire को अहमियत देना is one of the basic qualities of a man. Of man. ठीक है, तो we'll go with D. Desire over self-expression is
one of the basic qualities of man. Say desire over आ जाएगा यहाँ पे. The farmer suffered because the monsoon did not arrive On time. on time. Yes, यहाँ पे कोई और word नहीं आएगा. At, by, after use नहीं करते हम लोग. On time. Correct. The bride settled dash very well in the new environment. Settle down. down. यहाँ पे हम लोग use करेंगे is down. तो settle down मिलेगा. Bride settled down very well in the new environment. Correct. Are you really desirous dash visiting Japan? Of visiting. Yes. Okay. Are you really desirous of visiting Japan? Correct. Of is correct. Absolutely. When Indians from the south move north, they find certain aspects of life quite dash from their own. Different. Yes, यहाँ पे different ही थोड़ा positive word है. Strange तो नहीं बोलेंगे हम लोग. Different is fine. Quite different from their own. The sky is overcast. We dash. The storm will soon burst. Suspect. 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 Yeah, expect. Expect. Expect ही बोलेंगे. Suspect जैसा इसमें कुछ लग नहीं रहा मुझे शायद. Normal. We expect. The storm will soon burst. Yeah. We expect. Population increase dash with depletion of forest reserves has led to great daily hardships. Added. Coupled with. Coupled होगा. Fourth option होगा sir. Coupled. क्योंकि दो चीजों की बात चल रही है इसलिए population increase dash with depletion of forest reserves. अब देखो यहाँ पे क्या है ना? We need a word which is more appropriate. This coupled ज़्यादा अच्छा word है यहाँ पे. Coupled with depletion of forest reserves has led to great daily hardships. We could say. The national anthem is dash at every Sung. official function. Sung. Sung. Yes. The national anthem is sung at every official function. People say. The doctor took out his dash to examine Stethoscope. Stethoscope. telescope से. सबसे funny होगा मेरे ख्याल से horoscope यहाँ पे. Telescope, horoscope. Actually, stethoscope के अलावा Next level. Microsoft अलग ही level है वैसे. मेरा लेकिन बैक्टीरिया का इलाज कर रहा है. लेकिन एक बार को माइक्रोस्कोप पता है एक्सेप्टेबल है जैसे डॉक्टर के पास हो सकता है. लेकिन चलो ठीक है. स्टेथोस्कोप के अलावा बाकी सब फनी है. या संदीप टेलीस्कोप से अंदर का अंतरिक्ष दिख जाएगा सबसे. हॉरोस्कोप ज्यादा अच्छा है ना. चलो हम बताते हैं आपको कौन सी दवाई दे दीजिए. डेस्क के बाद अपनी बुक्स खोल रहे हैं. Stethoscope is fine. The candidate's exposition was dash for its brevity and clarity. वैसे इंडिया में हॉरोस्कोप वाला ज्यादा अच्छा चलेगा. तो डॉक्टर को मतलब वासिट्स देयर और दवाई दे रहा है और उसके साथ में हॉरोस्कोप के साथ. So remarkable. The candidate's exposition was dash. Yeah. Okay, the candidate's exposition was remarkable for its brevity and clarity. Correct. Okay. Okay. So हमने आगे क्वेश्चंस भी देख लिए. अच्छा भी हैं और The new India that Nehru led called itself a sovereign dash Socialist. democratic republic. Socialist. Socialist. तो ये तो quality आ गया यहाँ पे. Preamble. Is the new India that Nehru led called itself a sovereign socialist democratic republic. Yes, you work hard, you won't be able to Unless clear you even the work hard. preliminaries. Yes, unless you work hard. कंडीशन की जब भी हम बात करते हैं कि जब तक ऐसा करोगे जब ये नहीं करोगे तब तक ऐसा नहीं होगा. You always use unless. So unless you work hard, you won't be able to clear even the preliminaries. Until का कैसे यूज करेंगे फिर? Until देखो until जब हमेशा देता है
लिमिट देता है टाइम की, ठीक है, और अनलेस देता है टॉक्स अबाउट कंडीशन, ठीक है। अनटिल टाइम टॉक्स अबाउट टाइम लिमिट वाले सेंस में यूज करते हैं, अनलेस देता है कंडीशन। तो अभी इसमें कंडीशन क्या है कि जब तक ये काम करना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक ये नहीं होगा। अनटिल मोस्टली होता है आई विल नॉट लीव अनटिल ही अराइव्स, वो जब तक वो आ नहीं जाता, ठीक है, तब तक जाऊंगा नहीं। तो अनटिल उस वाले सेंस में यूज करते हैं जहाँ टाइम लिमिट की बात चल रही है, अनलेस कंडीशन की एक्शन जब तक नहीं हो जा रहा होता। गॉट इट? मतलब सेंस हल्का सा वही देता है ये। यस, ओके। चलिए लेट्स लुक एट these questions. सर ये सबसे मुश्किल है, ये वाली वर्कशीट, वो क्या है? सबसे कैसी है? सबसे मुश्किल। लेकिन हमें करने हैं सारे वो क्या, बस मेरे को याद आ जाए कि हम लोगों ने कहाँ तक किया था, मेरे को भी नहीं पता है, और रिपीट हो जाए तो भी मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है। 10 भी कर लिया था सर, पैराफ्रेज वाला 10th तक हम कर चुके हैं। ये क्वेश्चन यहाँ तक हो गया था, 10th भी कर लिया था। अलाउड, हाँ, रिसाइटेशन था ना इसका। ऐसा कुछ वेबसाइट है कुछ होगा जिसके अंदर से हम लिमिटेड वो कैब वाले Don't वर्ड्स fear निकाल me. सके, या फिर कुछ लिमिटेड कोई चीज हो जिसके अंदर हम लास्ट मोमेंट पे पढ़ सके। अभी तो लिमिटेड ही चल रहा है ये वाला। इट्स लाइक अभी मेरा एग्जाम है संडे को, कौन सा? सो वो ये एमबीए के लिए है। एमबी के नहीं लिए? सर, यस सर, एक्चुअली वो मतलब कि थोड़ा उसका लेवल कैट जितना नहीं आता, बहुत कम लेवल का आता है, एसएससी बैंक टाइप। सो अच्छा, इसलिए एग्जाम कौन सा है? मैट इस है क्या? बार नो सर, किसी दूसरे के? दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली अच्छा, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ओके तो उसका अलग से एग्जाम होता है। ओके 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 ओके। तो अभी उसके लिए वो गैप करना है, तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर देखे आपने कैसे हैं? सर वही तो प्रॉब्लम है ना। क्या? एक्चुअली इसमें एमबीए ये दूसरी बार पेपर हो रहा है। ओ, मतलब बहुत सारी मटेरियल अवेलेबल नहीं था पहले से, ऐसा है? हाँ सर, वो प्रीवियस ईयर पेपर भी नहीं मिल रहा ना, क्योंकि ये Sure. पेपर अभी दूसरी बार ही है, दूसरा बैच ही है ये। कोई बात नहीं, तो जनरल इंग्लिश आएगी, इसमें बहुत मुश्किल कुछ नहीं आएगा। यू कैन डू दी क्वेश्चंस, अभी एरर्स और ये सब कुछ कर लो यहाँ से। जो भी हम लोग कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो सब कुछ हेल्प ही करने वाला है, तो सर बिकॉज वो तो अगर कर नहीं लेंगे, वो तो कर लेकिन लेंगे। उसके अलावा जैसे जो मेन वो कैप का होता है, क्योंकि इन सब में वो कैप अच्छी आ जाती है कई बार। हाँ, क्योंकि वोकैब के लिए तो अभी हर कोई इसी पे रिलाय करता है, जो करंट वोकैब आता है ना, जैसे हमारे जो द हिंदू का आते हैं कुछ, बहुत सारी एप्स भी है ना जो द हिंदू की डेली वोकैब आपको देती है, यू कैन डू इट फ्रॉम देयर अगर इसके लिए कर रहे हो तो। हो सकता है नहीं? हाँ देख, वैसे नेट पे सर्च वो किया था लेकिन मुझे ऐसा मिला नहीं कि बाकी ये वेबसाइट वोकैब सर्च। वोकैब 24 है, वोकैब 24 पे देख सकते हैं वोकैब, ठीक है, ये है। बाकी चलो ठीक है, मैं क्लास में वोकैब देना स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं मोस्टली नेक्स्ट क्लास से हम लोग हर क्लास में करा करेंगे, 5 वर्ड्स हर दिन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, मैं इतना करूंगा, क्योंकि वो लग नहीं रहा सब लोग अलग से, मेरे को लगता है सब लोग अलग से अपने वर्ड्स कर रहे हैं बैठ के, लेकिन हर कोई कर नहीं रहा, हम यहाँ पे करना शुरू करेंगे, ऐसा है, ओके तब सर। थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, लेकिन उसके सर ये लिए तो वाला हाँ क्वेश्चन करंट कर लिया था। जरा कर लिया था हमने। हाँ, सेंड हिम पैकिंग भी कर लिया था, एडीयू वाला भी कर लिया था, शेड्यूल ये वाला भी इतना कर लिया था। आर्मी भी कर लिया था हमने, विंट्री होता है इसका आंसर, ओके, विंट्री था। नहीं इतना आगे नहीं गए थे सर हम, थोड़ा ऊपर ऐसे। हाँ, ये सोल्जर्ड भी नहीं करा था, ये भी नहीं करा, वैलो ओवरस्ट्रॉन्ग, कहीं तक बामे तक क्या था ओवरस्ट्रॉन्ग हमने? का कर रहा था। हाँ बामी तक करा था, हाँ ही तक करा था। कहीं तक क्या था हमने? तो इसमें क्या बताते हैं हमें? सर ये भी कर एक्सप्रेसेस लिया था। मीनिंग, कंसर्ट मींस पार्टनर, पार्टनर मतलब स्पाउस हो जाएगा इसका, ये था। हाँ हाँ सर ये करा था। ओवरस्ट्रॉन्ग, और रेपिटेशन, नो,
extremely nervous or tense. फोर्थ होगा रेस्टिव. इसका रेस्टिव हो जाएगा इस वैल्यू के बाद से करना है. अच्छा वैल्यू के बाद से करना है. वैल्यू पे तो हम लोग पहुंच गए. चलो वैल्यू से हो. वैल्यू क्या हो जाएगा. To indulge in some work which is which is not actually allowed here, which is the work which is pleasurable but is not legal, ऐसा कुछ उसे कहते हैं वैल्यू. और उसी के लिए हमारे पास सिनोनिम है लग्जरेट. ठीक है. टू गेट इन्वॉल्व इन सम pleasurable action, ऐसा कुछ या some illegal actions उसे बोलते हैं लग्जरेट और वैल्यू. ठीक है. टू गेट इन्वॉल्व इन, to get involved in pleasurable, ऐसे बोलते हैं ना, pleasurable actions, mostly illegal या जो allowed ना हो ऐसा कुछ. ठीक है. वैल्यू इसी सेंस में यूज होता है. सर हमने शायद सोल्ट भी कर लिया था. सोसल्ट क्या हो जाएगा. Drunk. Drunk, yes, है ना. सोसल्ट इज फॉर वेरी ड्रंक. ठीक है. तो ड्रंक हो जाएगा इसका. इनहिबिटर, hamper, Hamper. यस. हैम्पर. हैम्पर का मतलब क्या होता है. मतलब Stop. बाधा डालना. बाधा डालना. यस. हिंडर hindrance. है ना. हिंड्रेंस. ठीक है. इनहिबिटर, हिंडर और हैम्पर. ठीक है. सब्सिडी, एडवोकेट, कंपनसेशन वर्ड्स पता है हमें. इनहिबिटर मींस हिंडर. So inhibitor, we can also link it to inhibitions. इनहिबिशन टू इनहिबिट्स मतलब Inhibitions बोलते हैं ना इनहिबिशंस. कि हाँ इनहिबिशंस बोलते हैं कि कोई भी चीज जो वहां पे एग्जिस्ट कर रही है उस टाइम पे. means normally we say ना कि I have that inhibitions to do the, मतलब स्टेज पे बात करने के लिए I feel inhibitions, something like that. वो तो एम्बेरस that वाले सेंस में fear. यूज करते हैं ना. हैव दैट फियर. हाँ वो एम्बेरसमेंट वाले सेंस में यूज करते हैं ना वो तो. यस. ठीक है. फीलिंग ऑफ फियर और एम्बेरसमेंट. यस. यूज करते हैं एम्बेरसमेंट वो उस वाले सेंस. अच्छा देखो वैसे देखा है तो योर परफॉर्मेंस इज बीइंग हिंडर्ड बाय योर इनहिबिशंस ना. ठीक है. उसीलिए सर अलग ये टर्म क्या- है साथ में. सर ये इनहिबिशन स्टेज वाला इनहिबिशन क्या था, एक बार आप रिपीट कर दो, मेरे को समझ नहीं आया वो. इनहिबिशंस इज दैट फीलिंग जो फीलिंग कॉज मतलब जिस फीलिंग की वजह से इनहिबिशन उसे बोलते हैं. दैट फीलिंग दैट कॉज्ड एम्बैरेसमेंट ऑफ फियर. ठीक है. अच्छा. हाँ फीलिंग दैट कॉजेस. The nervousness या झिझक ठीक है. type हाँ. की वजह से कह सकते हैं. यस यस उसे बोलते हैं. ठीक है. तो एम्बैरेसमेंट ऑफ फियर और इट इज द कॉज ऑफ द हिंड्रेंस ना. हिंडर करता है मतलब परफॉर्मेंस या जो भी कुछ हो. तो इसीलिए इसके सिनोनिम में ही आ गया हैम्पर. ये है. तो कोई चीज जो इनहिबिशन क्रिएट करती है इट इज कॉल्ड इनहिबिटर और उसको हम हैम्पर भी बोल सकते हैं. ऐसा है. सर एक Yes. सेंटेंस ऐसा भी होता है ना कुछ कि आई हैव दिस इनहिबिशन दैट समथिंग इज गोना हैपन या दिस इज गोना हैपन. इनहिबिशन नहीं उसके लिए दूसरे वर्ड्स है हमारे पास. इनहिबिशन एज इन आप ऐसा बोलना चाह रहे हो कि मेरे को कुछ क्या बोलेंगे उसे. इंट्यूशन टाइप का वर्ड. हाँ. इंट्यूशन इज द वर्ड. हाँ Intuition, sir. इनहिबिशन. Okay. इंट्यूशन. ओके ठीक है सर. चलिए नेक्स्ट. ओके इसमें हमें बताना है ऑपोजिट. ठीक है. सर रेफ्लुजेंट का मतलब तो ब्राइट होता है, यस. तो इसका डार्क हो जाएगा. इसका मतलब ब्राइट होता है. इसका हो जाएगा डार्क. यस करेक्ट. स्केप्टिक.
स्केप्टिक, पैरानॉइड, एक जैसे वर्ड बने? nervous. नहीं, Believer. नर्वस तो एक बार को इसका सिनोनिम हो सकता है नर्वस में ना? हाँ, मुझे लगता है पैरानॉइड तो इट्स लाइक कि वो एक जो चीज बिलीव करता है वो वही सही है, वो जो कौन? Skeptic? मेंटली तो The पैरानॉइड। skeptic means doubtful, na? Like हाँ, we say, skeptic. I'm skeptical about this. स्केप्टिकल, पैरानॉइड एक ही जैसे वर्ड से बने वाले। पैरानॉइड तो अलग होता है ना, पैरानॉइड लाइक जो वो हाँ। कहता है कि हाँ ये सही है, वो किसी क्या और की कहता है? नहीं सुनता, जो वो बिलीव Paranoid करता है paranoid वो is- सही है। Yeah. इट्स लाइक अ Paranoid is more in the sense कि प्रॉब्लम लाइक बस वही So paranoid- like उसी के बारे में सोचते रहना बस, और हाँ हाँ, उसको- मतलब एकदम उसके देखो पैरानॉइड भी ठीक है। पैरानॉइड स्केप्टिक इस सेंस में है कि मतलब वो पैरानॉइड भी जल्दी से मानता नहीं है सामने वाले की बात किसी चीज में, ये सही हो सकता है नहीं हो सकता वाले सेंस में। और सब पैरानॉइड वो भी होता है कि उसको हमेशा ऐसा लगता है कि कोई उसे हमेशा हार्म पहुंचाना चाहता है या उसके अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रहा है। चीजें तो सिंग लिख कर बोलो, लिख के फिर बाकी लोग भी समझ पाएंगे ऐसा। actually Yeah. I was reading some novel in which there is character as a paranoid person. So in this paranoid was described like a person who is like what he thinks is the truth. Like Is the if truth. he thinks it is someone did something wrong, then it is the person is wrong. Person is wrong. If- Yeah. He do not believes in anyone. He Anyone. just he do not believes in anyone. The way he thinks, actually things are there for him. Yes. And skeptic is a person who doubts everything. So I Who's think not sure. Who's paranoid also is not sure. पता है ये it is a far, it is similar. I'm not saying it is the same meaning. I'm saying अगर पूछा जाता तो it is similar to that thing. अगर पैरानॉइड हो तो हम उसे सिमिलर में लगा सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि सेम मीनिंग, सिमिलर एंड सेम अलग चीज हो गई ना। आई मीन आई एम सेइंग कि सिमिलर वाले सेंस में मान सकते हैं ना फिर पैरानॉइड को स्केप्टिक के। तो कैसे वो डाउटफुल, और वो डाउटफुल है, वो तो जो सोचता है वो करता है, वो उसमें किसी और और की इसमें? नहीं सुनता। Okay, skeptic को हम मानते डाउटफुल हैं? रहता है कि स्पेक्ट्रम डाउटफुल है तो Yes. इट्स लाइक हाँ दूसरों की सुनेगा तो सही, वो स्पेक्टिकल अबाउट दिस, वो डाउटफुल है, skeptical वो about दूसरों की everything. सुनेगा। लेकिन पैरानॉइड पर्सन विल नॉट लिसन टू एनीवन, ही व्हाट ही सेज इज द ट्रुथ फॉर हिम। फॉर पैरानॉइड। यस सर। बट स्केप्टिकल के लिए भी तो यही है, वो किसी की मानेगा नहीं लेकिन जो वो बोलेगा वो उसके लिए सच है। Expected doubt. Okay. I'm skeptical about, skeptical is a person जो ठीक है जल्दी ही doesn't believe in anything, ठीक है, वो gullible का opposite हो गया ये basically skeptic। तो yes, we'll go with believer। अगर यहाँ पे gullible हो तो हम gullible पे लगा देते, ठीक है, ये word यूज करते हैं ना हम लोग। Person who believes everything easily। तो जो आप बोल रहे हो वही बार-बार बोल रहे हैं अलग-अलग फॉर्म में। यस, ठीक है, तो गलिबल पता है ना हमें। गलिबल इज अ पर्सन हु बिलीव्स एवरीथिंग इजीली, ठीक है। तो यस, स्केप्टिक के लिए हमारे पास ऑपोजिट में ढूंढ रहा है तो बिलीवर आ जाएगा, और स्केप्टिकल, ठीक है, स्केप्टिकल इज अ पर्सन जो विश्वास नहीं करता किसी चीज पे जल्दी से, जो किसी चीज को नहीं मानता, ठीक है। स्केप्टिक हम उसे मान लेंगे, तो यस ऑपोजिट इज बिलीवर, ठीक है। अभी है ना गाइस, ये सुनो, सही है। आगे देखें, एक्सजेनिएट। एक्सजेनिएट क्या होगा? यस, स्ट्रेंथ लग रहा है, ए लग रहा है, बट बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं आ रही। अब आ जाएगी। टू मेक समवन और समथिंग वीक और थिन, ठीक है। यस, इसका हो जाएगा स्ट्रेंथन, किसी चीज को स्ट्रॉन्ग बनाना, और एक्सजेनुएट का मतलब है किसी चीज को वीक बनाना। गॉट इट? एनफीबल, एनफीबल का मतलब भी आई गेस, क्योंकि फीबल बोलते हैं वीक के लिए,
तो एनफीबल का Yes, मतलब भी sir. वीक, हाँ तो एनफीबल का मतलब भी वीक करना होगा, तो विल गो विथ ई, स्ट्रेंथन करना. ओके, thickened इससे means highly fertile. Thickened means highly fertile. क्या हो जाएगा इसमें? Sterile. Sterile. Yes, it means unable to reproduce. ठीक है, तो इसका opposite fecund means highly fertile and sterile means unable to reproduce. So we will go with this one. Okay. Prolific ये भी हम लोग यूज करते हैं ना, fertile के लिए, ऑफस्प्रिंग के लिए उस सेंस में यूज करते हैं prolific. ठीक है, तो यस fecund तो हो जाएगा sterile. This is correct, opposite word. Okay. Okay, obfuscate. Clarify लग रहा है मेरे को. या इसका ऑपोजिट क्लैरिफाई हो जाएगा, बिकॉज इसका मतलब कंफ्यूजिंग, यस पजल या कंफ्यूजिंग ही होता है बिल्कुल से, टू और पजल. सर मतलब इन ऑप्शंस को देख के भी क्लैरिफाई लग रहा है, क्योंकि हेज का मतलब धुंधला, पजल का मतलब और पजल मुश्किल भी उसी सेंस में होता है, यस बिल्कुल और सही. एनवेलप भी देखो छुपाना. छुपाना हो गया. ठीक है, देखो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शंस इसी तरीके से दिए होते हैं. जब आपको एक वर्ड दिया जाए, उसका अगर ऑपोजिट पूछना है तो उसके कम से कम 2 सिनोनिम्स होते हैं इसके अंदर, वो कंफ्यूज करने के लिए ही होते हैं हमेशा. ठीक है, तो कोई भी अगर वर्ड दिया जाएगा और उसका आपसे ऑपोजिट पूछा जा रहा है, यू विल गेट 2 सिनोनिम्स. एक आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो सकता है इसमें, जबकि सारे ही मिलते जुलते लग रहे हैं. ठीक है, तो फिर हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं. बिल्कुल सही, क्लैरिफाई इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो चलिए ठीक है, इतने सारे वर्ड्स आप लोग नोट डाउन कर रहे हो. टर्मोइल कैसे बोलते हैं? व्हाट इज टर्मोइल? सर टर्मोइल मतलब दुविधा में, आई मीन अ बिग टर्मोइल, टर्मोइल, या ऐसे. बिल्कुल सही, डिसऑर्डर काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, चलिए ठीक है, तो आई होप वर्ड्स समझ आए होंगे वाले, और असली तरह से ठीक है. इस तरीके से वी विल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द वर्ड्स. पता है, वर्ड्स को कीप ऑन रिपीटिंग. So what is the meaning of this legalist? Nihilist. निहिलिस्ट किसे बोलेंगे? निहिलिस्ट, अ पर्सन हु इज, जो खुद के लिए क्या बोलते हैं, निहिलिस्ट. ये ऐसा बोल सकते हैं आप, स्केप्टिक का सिनोनिम है ऑलमोस्ट. ठीक है, स्केप्टिक का सिनोनिम बोल सकते हैं मिस्टर निहिलिस्ट को. पर्सन हु बिलीव्स इन निहिलिज्म. Erroneous. एरेनियस तो एरेनियस कोई भी जो गलती से रिलेटेड हो, उसे बोलेंगे एरेनियस. ठीक है, निहिलिस्ट इसी का सिनोनिम हो गया. ठीक है, बिलीवर का ऑपोजिट, जो बिलीवर ना हो, यस किरण. ठीक है, तो यानी कि हम स्केप्टिक का ऑपोजिट बोल सकते हैं, सॉरी स्केप्टिक का सिनोनिम इसे बोल देंगे. एंड एरेनियस कोई भी चीज में गलती हो उसे बोलते हैं एरेनियस. हमने वर्ड यहाँ पे क्या नहीं था, आप क्या बोल सकते हैं इसे? हैविंग एरर, कंटेनिंग एरर, कंसिस्टिंग एरर, कुछ ही बोल सकते हैं. फॉल्स. ठीक है, एरेनियस एक्चुअली एरर से ही रिलेटेड है. ठीक है, तो कंटेनिंग एरर ऐसा बोल सकते हैं. तो भी मैंने nihilist सर्च किया और वो दिखा रहा है कि a person who believes that life is meaningful and life is meaningless and rejects all religious and moral principles. बस ठीक है, स्केप्टिक हो गया.
मतलब वो ही डजंट बिलीव इन एनीथिंग। पता है स्केप्टिक वर्ड मोस्टली कहाँ पे यूज करते हैं? द पीपल जो बोलते हैं ना कि सब कुछ फिक्स्ड है, मतलब आई डोंट वांट मैचेस, क्योंकि सब कुछ तो फिक्स चल रहा है दुनिया में और सारे इलेक्शंस फिक्स्ड है, सब कुछ फिक्स्ड है। इस तरीके का जो इंसान होता है उसे हमेशा स्केप्टिक बोलते हैं कि उसे हर एक चीज में डाउट दिख रहा होता है, इसीलिए लाइफ इज मीनिंगलेस वो यूज किया गया उसके लिए। ठीक है, जो स्केप्टिक और निहिलिस्ट वी विल कॉल देम एज अ सिनोनिम। गॉट इट? Yes, sir. यस यस, चलिए ठीक है, तो लेट्स कीप इट टिल हियर। ठीक है, वी विल डिस्कस मोर वर्ड्स इन द नेक्स्ट क्लास, यानी कि हमारी जो एसएससी वाली जो क्लास होगी उसमें we will keep on practicing these words। पता है words will keep on, you will see कि words repeat होके सामने आ रहे हैं, तो हम इस तरीके से words repeat करेंगे। ये पुराने वाले words हम रिवाइज भी करेंगे किसी जल्दी जल्दी, ठीक है, एक बार ये करने के बाद, ताकि हम जो वर्ड्स हमने कर रखे हैं वो याद भी रहे जल्दी जल्दी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम idioms and phrases और vocab दोनों चीजें करेंगे। चलिए, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।